Good morning, dear students. So, last week we have completed our complex numbers first chapter of your M2. I believe all of you have understood each and every segments of complex number. I did around almost all the problems of your textbook, and I think all of you have understood all the problems. Now we have chapter 2, which is sequence and series. This is chapter 2 in your M2 book, which is sequence and series. See, this topic is divided into two parts. One is sequence and another is series. Correct? Now, first we have to understand the meaning of this sequence. I'm sure that all of you are aware about sequence. Sequence, we say arrangement of numbers. Let's say 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Let's say 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27, 1 by 81, and so on. Fine. And let's say we have 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, and so on. These are arrangement of numbers. These are what? Arrangement of numbers. These arrangement of numbers is known as sequence. Now, sequence is divided into, in fact, sequence becomes progression, not divided. Sequence becomes progression. When it becomes progression, when between two consecutive number in a sequence there is some pattern or there is some mathematical relationship. Look at this. 4 2, if you subtract 4 minus 2, you will have 2. 6 minus 4, you will have 2. Correct? 8 minus 6, we will have 2. So it should be consecutive. See, consecutive between two consecutive numbers, 4 2, 4 6, 6 8. So there is some pattern, or you can say there is some mathematical relationship. So this mathematical relationship is a difference. Correct? Second term minus first, third term minus second. So this common difference, what we call, and this sequence becomes progression. Correct? Let's say 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27. In this sequence, you see second term upon first is equal to third term, second upon first, third term 1 by 27 upon 1 by 9. You will get same constant value, which is 1 by 3. Correct? So again, here between two consecutive number, there is some mathematical relationship. Which type it is? Second upon first is equals to third upon second. So these pattern or mathematical relationship makes this sequence to progression. Correct? Now, progression is divided into three parts. First, we call it as a arithmetic progression. All of you well versed, all of you have done this arithmetic progression part in standard 10. So you know that TN, SN, and lots of problem all of you have done in standard 10. Now, progression have another type which is known as geometric progression. This is your arithmetic progression. This is geometric progression, and one more progression it is known as harmonic progression. This is geometric progression, geometric progression, and this is harmonic progression, harmonic progression. Fine. And arithmetic progression, all of you well versed, all of you have done in standard 10. Correct? So in standard 11 we don't have arithmetic progression, but we must to know the all the information of arithmetic progression to enter in our first second progression, which is geometric progression. For this we require some information of arithmetic progression. Fine. So once again I will recap what I taught till now. Look at this. These numbers are arranged. These arrangements are known as sequence. In this sequence, between two consecutive number, there is some mathematical relationship. Correct?
and that is known as progression, correct? And progression is divided into three types. Arithmetic progression, where the common difference we take, correct? Common difference we take. And there is second is geometric progression that we are going to start today onwards. And there is a harmonic progression. This harmonic progression is, look at this 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, third sequence. This sequence, its reciprocal must be in AP. Suppose if you reciprocate this sequence, so this becomes 2, 4, 6, and this came where? It is in AP. Then we can say this sequence 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6 are in where? HP. So we need not have to do anything for HP here, correct? So there, so okay, fine, fine. So there we'll start from here. I will recap arithmetic progression now. Look at this. So till here all of you understood progression, correct? Progression means in a sequence between two consecutive number there is some mathematical relationship. And progression is of three types: arithmetic progression, geometric, harmonic. One more progression it is, which we will discuss at the end of the sequence and series, which is known as arithmetic geometric progression. Correct? Arithmetic geometric progression. That we'll discuss later on. So I am going to start a recap of arithmetic progression. Although we don't have any exercise and problems based on AP in a standard 11, but for NDA and competitive exam, we must to know arithmetic progression also. Fine. So I'm just giving you a curtain raiser of arithmetic progression. एक इसको कहते हैं ना, झलक दे रहा हूं मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. आप सभी लोग वेल वर्स्ड हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से. ए प्लस डी, करेक्ट? ए प्लस 2d, this way it goes. A plus n minus 1 into d. A is your first term and this is your nth term, correct? So Tn you know, a plus n minus 1 into d. Fine. This is Tn. Nth term, what you say, or you can say last term, that you have to remember. Correct? Then there we have sum of n terms of an AP, which is n by 2, 2a plus n minus 1 into d, or you can say Sn equals to n by 2 a plus L, where L is last term, which is nothing but L equals to a plus n minus 1 into d. In fact, that is Tn also, correct? In AP, all of you are aware that if you add some constant to AP, correct, or you multiply or divide with non-zero number to this AP, the resultant AP is again in AP. Suppose you have 2, 4, 6, 8, correct? It is in AP. So if you multiply or divide by non-zero number, if you are dividing by 4 to this number or multiply this number by 4, the resultant will be again in AP, correct? This is again will be in AP. If you multiply, divide or add with non-zero constant number to each term of an AP, the resultant मीन्स जो नई जो सीक्वेंस मिलेगी या प्रोग्रेशन मिलेगी वो क्या होगी, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, करेक्ट? किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर जो जीरो नहीं हो, जीरो देंगे तो आप पूरी जीरो हो जाएगी ना. सो किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से आप एपी को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ईच टर्म को, करेक्ट, या ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ होगा डियर? एपी में ही होगा, ठीक है? Then in AP, all of you have came to know the three consecutive terms, three consecutive terms, which are those? A minus D,
ए प्लस डी, करेक्ट। ये कंजर्वेटिव टर्म का मतलब है ये कहीं कहीं के भी टर्म हो सकते हैं, जैसे 65, 66, 67 टर्म, करेक्ट। 4 कंजर्वेटिव टर्म्स के लिए आपने क्या देखा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, a plus d and a plus 3d. What is 5 consecutive terms? This is 4 consecutive. 5 consecutive terms are a minus 2d, a minus d, in fact a minus d, a and a plus d and a plus 2d. So this way you came to know these are 5 consecutive terms of a GP. सो दीज इंफॉर्मेशन बेसिक है जो आपको याद भी है तो याद रखना ही होगा, ठीक है। तो ये एपी के कुछ इंफॉर्मेशन आई शेयर्ड यू, एंड ऑल्दो आई नो दैट ऑल ऑफ यू वेल वर्स्ड विथ दीज इंफॉर्मेशन। टीएन, सम ऑफ एन टर्म्स, करेक्ट। किसी भी कांस्टेंट नंबर से एपी को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे या ऐड करोगे, रिजल्टेंट हमारा एपी में ही होगा। 3 consecutive terms of an AP, A minus D, A plus D, 4 consecutive terms, correct? So these are basic information. At the end, arithmetic mean आता है। Arithmetic mean अगर A and B, or you can say A, B, C, wait. Arithmetic mean which is known as face of AP also. हम AP के face से नाम से जानते हैं। A, B and C are in AP. अगर ये AP में है, what do you say? B equals to A plus C by 2, or you can say 2B equals to A plus C, ठीक है। इसको हम face of an AP भी कहते हैं। What do we say? Face of an AP. हर एक का face होता है, GP का भी face होगा, HP का भी होता है। So this is known as face of an AP. फेस ऑफ एन एपी कहने का मतलब अगर आपको किसी ने कह दिया कि साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड आर इन एपी, साइन जेड आर इन एपी, तो आप मैथमेटिकली इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन जेड, करेक्ट। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस अर्थमेटिक मीन, और यू कैन से फेस ऑफ एन एपी। तो फेस ऑफ एन एपी का मतलब ऐसा ही होता है, करेक्ट। सो एपी में आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। ये मैंने जस्ट रिकैप कर दिया आपको 10th का। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी 10th में सॉल्व किए हैं। सो आई एम श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अनफॉर्चुनेटली 11 में हमारे पास एपी की कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइजेज नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। बट एनडीए के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एनडीए में एपी के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, correct? So now we'll move to the most awaited जो आपके इस 11th स्टैंडर्ड के लिए है, which is geometric progression। ये हमने सीखना है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, इनफैक्ट टाइप्स इन द सेंस बहुत सारे इसके अंदर आपको सेगमेंट सीखने मिलेंगे, सम, ठीक है, DN, लॉट ऑफ थिंग्स यू विल कम टू नो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ फर्स्ट विल डिफाइन दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, इसको बड़े कॉमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ अगर 2, 4, 8, करेक्ट, 16, 32, अगर ये सीक्वेंस है कोई, तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सेकेंड 4/2 is similar of 3/2, correct? This is equal to 4/3 term। सबके रेशियो क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है जिसमें हमारा 2/1, 3/2, 4/3, ये क्या रेशियो दे रही है, कांस्टेंट रेशियो दे रही है। ये 2 कांस्टेंट है ना, 2 हर एक जगह रेशियो इसका 2 आ रहा है, कांस्टेंट ratio we are getting, which is 2. So a sequence in which between 2 consecutive numbers the ratio between them is constant everywhere is known as geometric progression। इसको आप मैथमेटिकली कैसे एलॉबरेट करते हैं, ये देखिए। A
AR square, correct, AR cube, 8R to the power 4 and so on, A into R to the power n minus 1. इसके अंदर देयर A is first term, A is first term of a GP, ठीक है, और R को हम कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है, या आप C.R से भी मैं लिखा करूंगा. सो R इज कॉमन रेशियो. सो आप देखो AR अपॉन A, अगर मैं AR अपॉन A करूं एंड देन AR स्क्वायर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड करूं, look at this, every time you will get the same ratio which is R. A get cancel, R square upon R. ये जो R आ रहा है this is known as common ratio, ठीक है. तो इस सीक्वेंस को हम GP कह देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको GP बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हाँ, तो अभी आपने ये क्या देखा, AR स्क्वायर, AR क्यू, AR 4 डॉट डॉट AR n माइनस 1. तो ये जो टर्म है ये है इसका nth टर्म ऑफ अ GP, ठीक है, ये TN इसको बोल दीजिए, या इसको आप nth टर्म ऑफ अ GP, ये क्या होगा डियर, A इंटू A फर्स्ट टर्म, R इज कॉमन रेशियो टू दी पावर n माइनस 1. ये R के ऊपर पावर है, ध्यान रखना है, A इंटू R टू दी पावर n माइनस 1. तो इसको आप डायरेक्ट AR n माइनस 1 लिखते हैं. अब है कि सर ये कैसे आया nth टर्म AR n माइनस 1, तो क्वाइट नेचुरल, आप इसको गौर से देखो, A इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म से R स्टार्ट हो रहा है, थर्ड टर्म पे R पे 2 हुआ, फोर्थ टर्म पे R पे 3 हुआ. तो जब ये nth टर्म पहुंचेगा तो n कितनी होगी, n माइनस 1 ही होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म पे R 0 है. जब ये रिच करेगा nth टर्म तो R कितनी पावर लिए रखेगा, n माइनस 1 ही, क्योंकि ये सेकेंड टर्म से ये पावर इसकी 1 स्टार्ट हो रही है, देन 2, राइट, देन 3, करेक्ट, देन 4. व्हेन इट विल रिच एट nth टर्म, जब ये nth टर्म पे पहुंचेगा तो R की पावर क्या होगी, n माइनस 1, ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी. आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है. सो nth टर्म ऑफ अ GP इज नथिंग बट A इंटू R टू द पावर n माइनस 1. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन राइज हो रहा है कि ये जो R होता है कॉमन रेशियो, ठीक है, ये कॉमन रेशियो क्या 1 हो सकता है, कैन वी से R इक्वल्स टू 1, कैन वी से कॉमन रेशियो, लेट्स से एक मैंने एग्जांपल लिया 2 2 2, ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लिया 3 3 3, क्या मैं इनको GP बोल सकता हूं, कैन वी से GP, ठीक है, सोचिए थोड़ा, ये 2 2 2 ऐसे 2 2 डॉट डॉट बढ़ रहा है, तो क्या मैं इसको GP बोलूं, क्योंकि आपके सभी के रेशियो, हर एक टर्म के रेशियो हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे 1 दिख रही है. तो क्या मैं R रेशियो 1 GP में ले सकता हूं, नेवर, कभी भी नहीं, ये GP कभी भी नहीं होंगे, बिकॉज रेशियो कभी भी 1 नहीं होता है, तभी तो रेशियो की बात होती है. रेशियो का मतलब क्या है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच जब आप कंपैरिजन करते हैं देन वी से रेशियो, करेक्ट. सो रेशियो नेवर बी 1. आप बोलेंगे सर आई हैव सीन समवेयर रेशियो इज 1. सो समटाइम्स सम मैथमेटिकल फेनोमेना, तो वो कुछ सिचुएशन ऐसी है तो वहाँ पे रेशियो 1 आ गया तो दोनों इक्वल हो गए. बट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब बात होगी तो रेशियो वी नेवर टेक 1. ऑलवेज रिमेंबर, R should not be equal to 1. Remember. So these sequence 2 2 2 3 3 3 4 4 4, it is never be a GP. ये कान खोल के आप सुन लें, करेक्ट. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन रेशियो होती है वो 1 के इक्वल कभी नहीं होती है, इवन 0 भी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है. R नेवर बी 0. अरे 0 होगा तो रेशियो कहाँ से आएगा, करेक्ट. सो R नेवर बी 1 एंड R नेवर बी 0. देन सर R नेगेटिव हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है R नेगेटिव.
आर पॉजिटिव भी होगा, आर आपका ये हो सकता है -1/2 हो सकता है, आर आपका 1/2 हो सकता है, कॉमन रेशियो आर कैन बी 1/1000 हो सकती है, करेक्ट, बट आर नेवर बी, रेशियो नेवर बी 1 एंड नेवर बी 0. रेशियो कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, रेशियो कैन बी 1/1000, 1/like, whatever it is. So this is very important कि रेशियो के बारे में आप जरूर समझ लें, ठीक है. जैसे आपके वहाँ कॉमन डिफरेंस आपने देखा था ईपी में, कॉमन डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए डियर, वो भी ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है. सो इन जीपी में कॉमन रेशियो नेवर बी 1 and it is never be equal to 0. So what we have observed till here, that we came to know Tn of a GP, which is a into r to the power n minus 1. A is first term, and r is common ratio या CR बोलेंगे इसको, ठीक है, nth term of a GP. फाइन डियर. सो हमने अब तक Tn के बारे में समझा जीपी में. अब हम इसमें थोड़ा आगे और बढ़ते हैं. इसके अंदर भी कंजुगेटिव टर्म्स होंगे, इनके भी जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, दैट वी विल डिस्कस नाउ. लुक एट दिस. सो इनमें भी प्रॉपर्टीज ऐसा है कि अगर 3 कंजुगेटिव टर्म्स लें, 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, जैसे एपी में हमने लिया उसी तरह कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी होता है. वहाँ पे आपने क्या देखा था, a माइनस डी, a प्लस डी. वहाँ पे a माइनस डी थी, यहाँ पे a अपॉन आर चलेगा, a अपॉन आर, a एंड ए आर, करेक्ट, वेयर r इज कॉमन रेशियो, a इज फर्स्ट टर्म. 4 कंजुगेटिव टर्म्स ले लें, 4 कंजुगेटिव टर्म्स, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, 4 कंजुगेटिव टर्म्स. ये क्या होगा, वहाँ पे क्या था डियर, a माइनस 3d थी, यहाँ पे a अपॉन आर क्यूब, ठीक है. वहाँ पे a माइनस डी था तो a अपॉन आर, देन a प्लस डी था वहाँ पे एपी में, यहाँ हो गया ए आर, और फाइनली ए आर क्यूब. 5 कंजुगेटिव टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है. 5 कंजुगेटिव टर्म्स, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर. सो दीज आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है. 5th 6th 7th टर्म हो सकता है, या आप ये 4th कंजुगेटिव टर्म ले रहे हैं, कहीं के भी ले सकते हैं आप. 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म. कंजुगेटिव मीन्स कंजुगेटिव टर्म्स होने चाहिए, करेक्ट. आई बिलीव इसके कंसेप्ट का वो आइडिया है, इसको आप याद रखें तो अच्छा रहेगा, और आप इसको एपी वाले से कनेक्ट करके रखिए तो याद रहता है. एपी में कैसा था, a माइनस डी, ए प्लस डी. तो ये जो माइनस डी है यहाँ पे अपॉन आर चलता है, प्लस डी जो है यहाँ इंटू चलता है ना. 4 कंजुगेटिव में क्या लिखा था हमने आपको, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3d एंड a माइनस डी, a प्लस डी भी लिखा था यहाँ, सॉरी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है, 3d. तो मैंने AP में लिख के दिखाया ही था आपको, तो वो याद रहेगा, उसी अकॉर्डिंग GP भी आप लिख सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स, 4 कंजुगेटिव टर्म्स एंड 5 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ GP. अब तक क्लियर हो गए. हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया डियर, जीपी हमने कैसे एलॉबरेट किया, ए आर, करेक्ट. मैंने एग्जांपल लिए, आपको दिखाया ये 2 4 8 16 32, हाँ, 2nd टर्म अपॉन फर्स्ट, 3rd टर्म अपॉन 2nd, इनके सबके रेशियो क्या आ रहे हैं, 2, विच इज़ कांस्टेंट रेशियो. सो जीपी हमारा डिफाइन होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस 1, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो. nth टर्म ऑफ अ जीपी क्या होगा डियर, विच इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है. रेशियो कभी भी 1 नहीं होती है, रेशियो कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है. ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है. कॉमन रेशियो कभी भी 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा. देन वी केम टू नो 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, 4 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, 5 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी. जीपी के और कुछ टाइप्स में आते हैं, प्रॉपर्टीज में, जैसे एपी में था. जीपी में कैसा होता है कि ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी, लेट्स से हमने एक जीपी ले लिया डियर 4, ठीक है, 16, 64, 256 एंड सो ऑन. सपोज दिस इज इन जीपी. अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं, करेक्ट, या डिवाइड करूं,
तो रिजल्टेंट हमारा जीपी में ही होगा। लेट्स से मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2 आ गया डियर, दिस केम 8, दिस केम 32, दिस केम 128, ये भी जीपी में होगा। चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे, 8/2 इज इक्वल टू 32/8, करेक्ट। लुक एट दिस, 4 आ गया कॉमन रेशियो इसका। सो in a GP, if you multiply or divide with a non-zero constant number, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस कहाँ होती है, जीपी में ही होगी, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं चलता है, लाइक इन एपी में आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट एपी में होता है। जीपी में क्या चलता है, केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दूसरी ओर अगर आप इस 416 इसका रेसिप्रोकल अगर देखते हैं 1/4, यानी आप इस जीपी को रेसिप्रोकेट कर दिया, 1/4, 1/16, 1/64, 1/256, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑल्सो इन जीपी होगा, ठीक है। सो दीज टू यू हैव टू रिमेंबर, करेक्ट। इसमें थर्ड ये भी है कि अगर आपके इस जीपी में लेट्स से 4, 16, 64, करेक्ट, 256 ये जीपी में है, आर इन जीपी। इफ वी पुट अ सेम पावर टू ऑल दीज टर्म, जैसे मैंने 4 पे क्यू डाल दिया, 16 पे क्यू डाल दिया, कांस्टेंट पावर, 64 पे क्यूब डाल दिया, सो ऑल्सो इट इज इन कहाँ होगी, जीपी में होगी, ठीक है। तो ये 3 फीचर आप अच्छे से इनफैक्ट प्रॉपर्टीज समझ के लीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई कि इफ़ यू हैव एनी जीपी, अगर इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ नॉन जीरो कांस्टेंट, हर एक टर्म को उस कांस्टेंट से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट जो नई सीक्वेंस आएगी वो भी जीपी में होगी। अगर जीपी को अगर रेसिप्रोकल कर देते हो 1/4, 1/16, 1/64, तो ये भी जीपी में ही होगी। और अगर आप अपने जीपी सीक्वेंस पे एक सेम पावर सभी पे डालते रेज करते हो, 4 पे, 16 पे, 64 पे सेम पावर, लाइक 3, 3, 3, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस कहाँ होगी, अगर होगी अगेन इट इज इन जीपी। क्लियर। सो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी हो गए डियर, ठीक है। सो nth टर्म वी केम टू नो, properties of GP we came to know, 3 consecutive terms, 4 consecutive terms and 5 consecutive terms of a GP we understood, correct. So now we will move to problems based on GP के ये कुछ अब तक जो हमने nth टर्म सीखा है, हाँ, TN क्या होता है, करेक्ट, कंजुगेटिव टर्म्स क्या होते हैं, गॉट इट, ए और आर कैसे निकाली जाएगी, तो ये सारे क्वेश्चन पे बेस्ड पे ज्योमेट्रिक के वी विल डू सम प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज दिए हुए हैं, हाँ, तो उन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हम करते हैं। लुक एट दिस, विल मूव टू योर एक्सरसाइज विच इज गिवन चैप्टर 2.1. लुक एट दिस एक्सरसाइज नंबर 2.1। आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है या ई बुक है, तो आप उनसे रेफर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन जीपी, इफ इट इज जीपी देन फाइंड टीएन। सो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन में कह रहा है चेकिंग एडियर कि क्या ये जीपी में है या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 6, 18, 54, correct, 54 it is, and so on. So first we have to check whether it is in GP or not. तो आप कैसे चेक कर लेंगे, जीपी चेक करने का तरीका क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड। सो इट लुक्स कि एवरीवेयर वी आर गेटिंग रेशियो 3, करेक्ट, ये हमारा कॉमन रेशियो है। So this sequence it is in where? This is in GP. ये GP में है, no problem at all. ये कहाँ है, GP में है।
तो अगर जीपी में है तो इसके हमें टीएन चाहिए। तो टीएन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है डियर, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यहाँ क्या है हमारे पास, व्हाट इज ए इज गिवन, फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो विच इज आर, एंड दिस इज नथिंग बट 3, आर 3 है। तो हमने इसका टीएन लिख देना है। टीएन क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 टू दी पावर एन माइनस वन, दैट्स इट। ठीक है, या आप इसको 2 इंटू 3 टू दी पावर एन माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज टीएन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये आंसर सही है? तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आप 1 2 3 डाल दीजिए एन की वैल्यू, तो आपके सीक्वेंस दिख के आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा टीएन रेडी हो गया, तो हमने दो चीज़ शो कर दिया। पहला कि हमने ये सीक्वेंस जो है वो जीपी में है, ठीक है, दिस वी हैव शोन, विच वे, कॉमन रेशियो हमारा कांस्टेंट आ रहा है विच इज़ 3, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड, fine, then we have used Tn formula of Gp, so this formula came 2 into 3 to r n minus 1। अब मैं यहाँ चेक करूँ, अगर मैं n1 डालता हूँ, Tn1, तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, 2 into 3 to the power 1 minus 1 0, ठीक है, तो 2 ही मिलेगा। T2 डाल दो अगर आप, n की वैल्यू 2, 2 into 3 to the power 1 which is 6, ठीक है। इफ़ यू पुट T3, n की वैल्यू 3 डाल दीजिए, T3, तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 माइनस 1, सो दिस इज नथिंग बट 18। सो लुक एट दिस, 2 6 18 ऑल आर देयर हियर, 2 6 18, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, करेक्ट। ये सारे टर्म्स होते हैं ना सीक्वेंस के, और ये ज्योमेट्रिक हुआ, ये सीक्वेंस किस तरह की हो गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसका हमने टीएन निकाला और आपने आंसर भी यहाँ चेक कर लिया कि योर टीएन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द आंसर इज दिस वन, वेर ए इज 2, कॉमन रेशियो इज 3, टीएन इज दिस, एंड फर्स्ट पार्ट में हमने ये जीपी शो कर दिया कि दिस इज इन जीपी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 में कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जहाँ पे आप पहले जीपी चेक कीजिए, फिर उसके टीएन को कैलकुलेट कीजिए, और इफ़ यू वांट यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है। चलें, मूव टू नेक्स्ट सम, इसके अंदर से ही एक दो उठा लेते हैं, वहाँ चेक भी की जाएगी। नेक्स्ट सम आई एम टेकिंग, दिस इज गिवन, हमें चेक करना है कि ये 1 माइनस 5 25 माइनस 125 डॉट डॉट डॉट, वेदर दिस इज इन जीपी, अगर है तो इसकी टीएन कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट विल सी माइनस, हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं, कैसे चेक करेंगे कि ये जीपी है या नहीं। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट इक्वल होना चाहिए किसके, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड, वो भी इक्वल होना चाहिए किसके, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड। यस ऑफ कोर्स इट इज़ इन जीपी, बिकॉज एवरीवेयर हमें रेशियो क्या दिख के आ रही है, -5, हर एक का रेशियो -5 ही है। तो इसको हमने कॉमन रेशियो भी बना दिया, और इसका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में आर लिखते हैं। हमारे पास ए डियर क्या दी हुई है, 1, कॉमन रेशियो आर क्या आ गया, -5। तो वी आर कॉन्फिडेंट इनफ नाउ टू राइट द nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n-1, a हमारे पास 1 है, r इज -5 टू द पावर n-1, ठीक है, या इसको आप -5 टू द पावर n-1 भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज आर Tn। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये जीपी में है। येस ऑफ कोर्स इट इज इन जीपी, क्योंकि हमें सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, सभी के रेशियो क्या मिल रहे हैं, कांस्टेंट, विच इज -5। सो इट इज इन जीपी। दिस इज इन वेयर, दिस इज इन जीपी। ए हमारा फर्स्ट 1 है, फर्स्ट टर्म, आर क्या निकल आई है, -5, तो हमने Tn लिख दिया, विच वी नो द फॉर्मूला a इंटू आर n-1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड r, विल गेट
this as a TN. This is your TN of this GP. करेक्ट. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के दो सम हमने लिए. रिमेनिंग क्वेश्चन यू ट्राई योर सेल्फ, करेक्ट, एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ आई मूव टू द सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 में दो तीन और प्रॉब्लम दिए हुए हैं जो आप एज ए होमवर्क ट्राई कीजिए, ठीक है. और भी मैं कुछ सम दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. चलिए डियर, सो नाउ आई एम टेकिंग in the next video the second type, third type questions. Fine. So till then all of you go through this problem, जो भी हमने प्रॉब्लम किया है और कंसेप्ट व्हाट वी हैव शेयर्ड विथ यू, उस सारे कंसेप्ट्स को गो थ्रू करो, करेक्ट. फॉर्मूलाज को लिख लो रफ कॉपी में, एंड वेन एवर यू गो थ्रू द वीडियो sit with copy pen so that important thing immediately you copy it, because I told you mathematics very few theory part is there. See, the formula is now, you know, the concept. So TN का ये formula अगर नहीं याद है तो no use of to knowing GP. To know GP, you must to remember the TN of this formula, correct? Conjugative terms of a GP, fine? 3 conjugative, 4 conjugative, properties of GP. मीन्स अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, या उस पर पावर सेम पावर रेज कर रहे हो, तो रिजल्टेंट सभी कहाँ आ रहे हैं? जीपी में आ रहे हैं. फिर हमने 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म कंजुगेटिव टर्म्स देख लिए, करेक्ट डियर? अंडरस्टूड? 3 कंजुगेटिव टर्म्स, 4 कंजुगेटिव टर्म्स, 5 कंजुगेटिव टर्म्स, तो इन पे प्रॉब्लम्स आगे हमें मिलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कि हमने क्या देखा, स्टार्टिंग व्हाट इज जीपी. I elaborated very simple way, so you will never forget in your entire life. पूरी लाइफ नहीं भूल सकते कि आपने जीपी के बारे में क्या समझा. क्या समझा कि कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा, कॉमन रेशियो 0 नहीं होगा, जीपी सीक्वेंस के अंदर कंजुगेटिव टर्म्स के बीच सेकंड और फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ, सभी के बीच रेशियो कांस्टेंट होंगे. आर विल बी कांस्टेंट, एंड वो 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा. तो ऐसे सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यू केम टू नो, एंड आई टुक 1 or 2 problems of this exercise. So in the next video we will do some more problems in this chapter 2.1. ठीक है, चलिए, we'll meet in second video, करेक्ट. तब तक आप इनको गो थ्रू कर लीजिए.